پریز دا لارڈ، ہاللیلویا۔ دوستو، اس وقت میں آپ کے پاس جو مضمون لے کے آیا ہوں وہ ہے حاملہ عورت اور 7 نرسنگیں۔ مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اور اس کی دوسری آیت، یہاں لکھا ہے وہ حاملہ تھی اور درد ذہن چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ یہ ایک رویا کا حصہ ہے جو یوحنا نے لکھی۔ دراصل پوری مکاشفہ کی کتاب ہی ایک رویا ہے، اور مکاشفہ کا رائٹر یوحنا کہتا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو آسمان پہ ایک بڑا نشان دیکھا، اور وہ ایک عورت تھی جو پریگننٹ تھی اور درد ذہن میں چلاتی تھی۔ اور یہاں جو چلانے کا لفظ ہے کرائنگ ان لیبر پین، تو اس کے لیے جو بائبل میں لفظ آیا ہے شی کرائڈ آؤٹ، اس کا مطلب ہے آہوزاری کرنا، رونا، اور پھر او بکا کرنا، بلند آواز سے رونا اور ایسی آوازیں نکالنا جس میں دکھ پایا جاتا ہے، جس میں غم پایا جاتا ہے، جس میں خطرہ اور مصیبت نظر آتی ہے، جیسے کوئی مدد کے لیے چلاتے ہیں ایسی آواز۔ تو ویسے بچہ جننے کے لیے تو نارمل جو پین ہے وہ خداوند کی طرف سے مقرر ہے، لیکن یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہ جو عورت ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ 3 تصور پائے جاتے ہیں۔ پہلا تصور یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مقدسہ مریم کو پیش کرتی ہے یہ عورت، لیکن وہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ مقدسہ مریم یہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس میں وہ باتیں درج ہیں جو آنے والے زمانے کے لیے ہیں۔ تو جب مکاشفہ کی کتاب لکھی گئی 96 میں، تب تو خداوند یسوع مسیح آسمان پہ بھی جا چکے تھے اور شاید مقدسہ مریم کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہو، لہذا یہ مقدسہ مریم نہیں ہے۔ پھر بعض لوگوں کا خیال ہے یہ کلیسیا ہے، اور اگر کلیسیا ہو تو پھر کلیسیا بھی میں آپ کو بتا دوں مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب کے بعد ہمیں کلیسیا نظر نہیں آتی۔ ہاں 7ویں باب میں یوحنا نے دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑی بھیڑ ہے جو آسمان پہ جا چکی ہے، اور 4 باب میں ریپچر ہو چکا ہے، لہذا کلیسیا بھی نہیں ہے۔ تو تیسرا نظریہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم کو پیش کرتی ہے۔ جی ہاں، میں اس نظریے سے اتفاق کرتا ہوں، یہ عورت بنی اسرائیل قوم کو پیش کرتی ہے۔ اور حاملہ ہونے اور درد ذہن میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ عورت یعنی بنی اسرائیل قوم مصیبت میں ہے۔ تو یہ مصیبت کیسی، درد ذہن کیسا؟ دراصل ریپچر کے وقت کلیسیا جب آسمان پہ اٹھا لی جائے گی، یہاں مکاشفہ کے مطابق تو اٹھا لی گئی ہے 4 باب میں، لیکن میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں۔ جب کلیسیا آسمان پہ اٹھا لی جائے گی، ریپچر ہوگا، خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز کے ساتھ اپنی کلیسیا کو آسمان پہ لے جائے گا، تب زمین رہنے کے قابل نہیں ہوگی۔ یہاں ظلم ہوگا، یہاں مصیبت ہوگی، یہاں دکھ ہوں گے، بلکہ ایک بڑا خطرناک لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے وہ ہے ٹریبیولیشن۔ آج کلیسیا جو ہے وہ اعزا رسانی یا پرسیکیوشن میں سے گزر رہی ہے، لیکن جب کلیسیا آسمان پہ چلے جائے گی تو اعزا رسانی نہیں، غضب ہوگا خدا کا غضب۔ خدا کا غضب اس لیے کہ زمین پر لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کیا، نجات کے پیغام کی توہین کی، اور یسوع مسیح کے خون کو مسترد کر دیا، اور نجات پانے سے وہ کوسوں دور چلے گئے، مسیح کو کا انکار کر دیا۔ کلیسیا آسمان پہ چلی گئی، اور جو زمین پہ رہ گئے ان پر خدا کا غضب۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 7 مہریں کھولی گئی، اور یہ 7 مہریں برہ نے یعنی خدا کے برہ نے خداوند یسوع مسیح نے کھولی۔ اس کا مطلب ہے کہ غضب کا آغاز خداوند یسوع مسیح نے کیا، اور اس دن کو غضب کے دن کو کہا جاتا ہے خداوند کا دن، the day of the Lord۔ اور اس کی جو مدت ہے یہ تقریباً 7 سال ہے، اور یہ مصیبتوں کا دور ہے، بلکہ اس کے 2 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا آدھا حصہ جو ہے وہ مصیبتوں کا دور ہے، اور دوسرا آدھا حصہ جو ہے بڑی مصیبتوں کا دور ہے۔ میں 7ویں مہر کی طرف آؤں گا۔ مکاشفہ 8ویں باب میں ہمیں ملتا ہے 7ویں مہر کا کھلنا۔ تو جب 7ویں مہر کھولی گئی تو آسمان پر 30 منٹ تک خاموشی رہی، اور پھر 7 فرشتے دیکھے گئے، اور یوحنا کہتا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 7 فرشتے ہیں، اور ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک نرسنگا ہے، اور وہ نرسنگیں پھونکنے کے لیے تیار ہیں، اور ان 7 میں سے
ایک فرشتے نے یہ کیا بخور لے کر قربان گاہ کی آگ اس میں بلی اور زمین پہ ڈال دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ایک بڑا ارتھکویک آیا، ایک بڑا بھونچال آیا، گرجیں پیدا ہوئی، آوازیں پیدا ہوئی، بجلیاں پیدا ہوئی۔ یہ جو زلزلہ ہے یہ کوئی عام زلزلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اب تک جو زلزلے آئے ہیں یا دوسرے ممالک میں بھی آئے ہیں، بمشکل ان کی جو شدت ہوتی ہے 6.5 یا بہت زیادہ ہو تو 7۔ یہ زلزلہ جو ہے مجھے اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہے، یہ تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، اور ایسا زلزلہ نہ کبھی دیکھا اور نہ اس سے پہلے ہوا ہے۔ ایسا زلزلہ، گرجیں پیدا ہوئی، آوازیں پیدا ہوئی، اور پھر ان آوازوں کے ساتھ 7 فرشتے اپنا اپنا نرسنگا لے کر پھونکنے کو تیار ہو گئے۔ پہلا نرسنگا، the first trumpet blown۔ مکاشفہ کی کتاب کے 8ویں باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب پہلا نرسنگا پھونکا گیا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور تہائی زمین جل گئی اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ یہ بڑا غضب ہے خدا کا جو انسان کے اوپر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ خدا اگرچہ محبت ہے لیکن وہ انصاف بھی کرتا ہے، وہ عادل بھی ہے، مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا۔ بائبل لکھا ہے وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ آج تو وہ مجرم کو بری کرتا ہے، آج تو فضل کا دور ہے، کلیسیا کے آسمان پہ جانے سے پہلے تو فضل کا دور ہے، وہ معافی بھی دیتا ہے، فضل بھی کرتا ہے، لیکن پھر وہ معاف نہ کرے گا۔ اور جب پہلا نرسنگا پھونکا گیا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی، زمین پہ ڈالی گئی، اور تمام درختوں میں سے 1/3 درخت جل گئے اور ہری گھاس کا خاتمہ ہو گیا۔ دوستو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں کہ درخت جل جائیں تو آکسیجن نہیں پیدا ہوگی، درخت جل جائیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جذب نہیں ہوگی، لوگ سانس کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، اور پوری زمین پر جتنے درخت پائے جاتے ہیں ان کا 1/3 جو ہے وہ جل گیا۔ اس کا مطلب ہر طرف تباہی تباہی، سانس کی بیماریاں اور لوگ مشکل میں۔ پھر ہری گھاس بھی نہ رہی۔ اب تو بڑے شوق سے ہم گھاس کے اوپر جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمیں آکسیجن ملتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی ہی مصیبت ہم دیکھتے ہیں فرعون کے اوپر بھی آئی، مصر کے اوپر بھی آئی۔ آپ کو یاد ہوگا مصر کے اوپر جب 7ویں مصیبت آئی ہے، جسے 7ویں آفت کہتے ہیں، خروج کی کتاب کے 9ویں باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے اس وقت بھی اولے پڑے تھے اور ان اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی، بڑی زبردستی۔ لیکن میں یہ کہوں گا وہ اس آگ کے مقابلے میں، ان اولوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اور مصر پر ایسا کیوں ہوا؟ مصر پہ آفت کیوں آئی؟ فرعون کی ہر ترمیم اور ان لوگوں پر جو زمین پہ رہ گئے ہیں، کیونکہ کلیسیا تو آسمان پہ ہے، ان پر مصیبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے مسیح کو رد کیا۔ اور پھر اس وقت بھی جب کلیسیا آسمان پہ جا چکی ہوگی اور نرسنگا پھونکا جائے گا اور مصیبت ہوگی، بے شمار لوگ اس وقت بھی قبول نہیں کریں گے، جبکہ اس وقت یہودی ایماندار جو ہیں، یہودی مبشر جو ہیں، جو اس وقت خدا کو قبول کریں گے، وہ منادی کریں گے، اور بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لائیں گے بھی اور شہید بھی ہوں گے۔ لیکن یہ لوگ جو گناہ میں ہیں، جنہوں نے مسیح کو رد کیا، وہ قتل سے بس نہیں ہوئے۔ پھر دوسرا نرسنگا، مکاشفہ 8ویں باب کی 8ویں اور 9ویں آیت، یہاں لکھا ہے کہ مکاشفہ کا رائٹر کہتا ہے کہ میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ بڑا آگ سے جلتا ہوا پہاڑ ہے، اس کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اب دیکھیے، اگر ایک بڑا پہاڑ آگ سے نہ بھی جل رہا ہو، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو پانی سارا بہہ کر سڑکوں پہ آ جائے گا، گھروں میں آ جائے گا، تباہی مچ جائے گی۔ لیکن یہ آگ سے جلتا ہوا پہاڑ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آگ سے جلتی ہوئی چیز کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن یہ خداوند کی طرف سے ایسا ہے کہ آگ بھی اپنا کام کر رہی ہے، پہاڑ سمندر میں گرا دیا گیا ہے، اور 1/3 سمندر خون ہو گیا اس کی وجہ سے، اور 1/3 بحری مخلوق مر گئی، ہر طرح کے جو بحری جانور ہیں وہ مر گئے، اور 1/3 جہاز برباد ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں ایک اندازے کے مطابق لاکھوں لوگ سمندر میں سفر کر رہے ہیں، بحری جہازوں کے اوپر مختلف علاقوں میں، لیکن 1/3 جہاز ان میں سے تباہ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ یونا نے تو دیکھا کہ ایسا ہوا ہے،
लेकिन ये होगा कब होगा? कलीसिया के असमान पे उठाए जाने के बाद। तो दहाई समुद्र का खून होना, दहाई समुद्री मखलूक का मर जाना और दहाई जहाज का तबाह हो जाना, ये दुनिया के लिए तबाही का मंजर होगा। और ये समुद्र जो है पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, एक समुद्र दूसरे समुद्र के साथ कनेक्ट है। इस तरह मतलब यह कि पूरी दुनिया में तबाही होगी और ताफुन उठेगा जब समुद्र के जानवर मर जाएंगे और फिर उनमें अंदर पहाड़ देखा गया है, तमाम मरे जानवर बाहर आ जाएंगे, ताफुन फैलेगा, लोग बदबू से भी मर जाएंगे। अब हम देखेंगे तीसरा नरसिंगा, इसका जिक्र है मुकाशवा 8वां बाब उसकी 10वीं 11वीं आयत में। और हम देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि मैंने निगाह की तो एक बड़ा सितारा आसमान से गिरा, मशर की तरह चलता हुआ एक सितारा टूटा, और वो कहते हैं कि उसका नाम नागदूना यानी वर्मवुड है, क्योंकि ये जो नागदूना है एक बहुत कड़वी झाड़ी है। कहते हैं कि अगर इसको आपको सिर्फ चाक ही ले तो मौत वाक़या हो जाती है, इस कदर कड़वी झाड़ी है। और जब ये सितारा, बड़ा सितारा जो नागदूना जिसका नाम है वर्मवुड जिसका नाम है, ये दरियाओं पे डाला गया, चश्मों पे गिराया गया, पानी के सफाई पे गिराया गया, तो पानी जो है नागदूने की तरह कड़वा हो गया और नतीजा बेशुमार लोग प्यास से मर गए, क्योंकि पानी के जखायर जो है वो तमाम के तमाम जो है वो कड़वे हो गए। अब आप कहेंगे कि जी हम तो मिनरल वाटर यूज करते हैं प्लांट के साथ, लेकिन वो प्लांट्स जो है वो पानी कहां से लेते हैं? वो जमीन से लेते हैं। जब जमीन पे पानी के जखायर कड़वे हो जाएंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब लोग कड़वा पानी पीने के लिए, एक बूंद पीने के लिए तड़प रहे होंगे कि किसी तरह से जान उनकी बच जाए। तो इस तरह ये मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत। अब हम देखेंगे चौथा नरसिंगा जिसका जिक्र है मुकाशवा की किताब 8वां बाब उसकी 12वीं और 13वीं आयत, और लिखा है कि जब चौथा नरसिंगा फूंका गया तो तिहाई सूरज 1/3 पार्ट ऑफ द सन तारीक हो गया, तिहाई चांद तारीक हो गया, तिहाई सितारे तारीक हो गए, दिन के वक्त रोशनी जाती रही। इसका मतलब लोग टटोल कर फिरेंगे, रोशनी नहीं होगी, सूरज तारीक, चांद तारीक, सितारे तारीक। और फिर उस तारीकी में आसमान पर यूहन्ना कहता है मैंने निगाह की तो एक बड़ा उकाब है, और वो उकाब जो है वो ऐलान कर रहा है, वो कह रहा है अभी तो 3 अफसोस बाकी है, चार नरसिंगे फूंके गए हैं, अभी तो 3 आने वाले अफसोस है जिनके लिए दुनिया में अफसोस है कि वो उनमें से गुजरेंगे। और आज मैं आपसे कहूं, अफसोस है ऐसे लोगों पर जो हट गर्मी से इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है यीशु मसीह आएगा, कलीसिया को ले जाएगा, हम जमीन पर रह जाएंगे और खतरों में से गुजरेंगे, आजमाइशों में से गुजरेंगे और मुसीबतों में से गुजरेंगे और ऐसा मजा चखेंगे कि उनको मौत भी जो है मांगे से नहीं मिलेगी। याद रहे कि जब खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया तो चौथे दिन उसने सूर्य, चांद, सितारों को बनाया, और यहाँ चौथा नरसिंगा जब फूंका गया तो यही सूरज, चांद, सितारे जो है वो तारीक हो गए और ये जमीन रहने के लिए बिल्कुल नाकाबिल हो गई। अब जैसा कि उकाब ने कहा था कि 3 अफसोस होने वाले हैं, तो 5वां नरसिंगा जो मैं आपके सामने बयान करूंगा वो पहला अफसोस है। तो 5वां नरसिंगा मुकाशवा 9वां बाब उसकी पहली आयत से 12वीं आयत तक। और यहां फिर यूहन्ना कहते हैं मैंने निगाह की तो एक बड़ा सितारा जो है वो आसमान से नीचे गिरा, उसके हाथ में अथाह की चाबी थी। अब आप कहेंगे सितारा और उसका हाथ और हाथ में चाबी, ये खुदा की कुदरत है, कुछ भी हो सकता है। और वैसे एक बात बताता चलूं कि मुकाशवा की किताब में जो इमेजेस हैं, जो साइन और वंडर्स हैं, जो बड़े बड़े निशान दिखाई दे रहे हैं, ये अलामती हैं, हकीकी नहीं, लेकिन उनमें हकीकत है। दे आर सिंबॉलिक नॉट फिजिकल, लेकिन इनमें हकीकत पाई जाती है, उनके पीछे कोई सबक है। तो सितारा जो जमीन पे गिरा, जिसके हाथ में अथाह की कुंजी है, उसने अथाह को खोला और एक जबरदस्त धुआं जो है निकलने लगा और उसने पूरी जमीन को तारीक कर दिया। सूरज तारीक हो गया, हवा तारीक हो गई, और उस धुएं में जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि तारीकी हो चुकी है, जमीन पर टिड्डियां निकल आई। एक नशुद, दो शुद, मुसीबतें 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 मुसीबतें, नजर कुछ नहीं आ रहा,
अगर दिन का वक्त होता, तारीकी ना होती, तो शायद लोग टिड्डियों से बच के घरों में छुप जाते, लेकिन रोशनी नहीं है और जमीन पर टिड्डियां निकल आई हैं और ये टिड्डियां घरों में भी घुस गई हैं। ये टिड्डियां जो है उनकी जो पावर है, उनके अंदर जो डंगने की वो है कैफियत है बिच्छुओं की सी थी, यानी उनमें बिच्छुओं की सी ताकत थी। उनको सिर्फ डंग मारने का हुक्म था, जान से मारने का हुक्म नहीं था, बल्कि ये था कि जिसको ये टिड्डी डसेगी, और इस तरह के वो 5 महीने तक लोग असियत में तड़पते रहे और कहे खुदावंद हमें मौत दे दे। लेकिन अब वो खुदा को पुकारेंगे और कहेंगे रब मेरी सुन ले, मेरी मुसीबत तो बचा ले, लेकिन अब सुनने का वक्त नहीं है, क्योंकि आपने यीशु को रद्द किया। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 11वीं 12वीं आयत में लिखा है यीशु मसीह अपने घर आया, वो आपके पास आया, उसने निजात का बंदोबस्त किया। लिखा है कि उसके अपनों ने कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने कबूल किया यीशु मसीह ने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। और वही है जो कलीसिया मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे, जो कलीसिया उठा ली जाएगी रैप्चर के वक्त। लेकिन वो लोग जिन्होंने मसीह को रद्द किया मौत ढूंढेंगे, मौत नहीं आएगी। और ये पहला अफसोस है। अभी 2 अफसोस बाकी हैं। दोस्तों बहनों भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मौत ढूंढने की बजाय क्यों नहीं अब भी खुदा को कबूल करते, अगर ये आपका फर्स्ट चांस है। याद रखें, जिन्होंने अब गॉस्पेल को सुन लिया है, खुशखबरी को सुन लिया है, अगर आज रैप्चर हो जाता है तो वो उन्होंने कबूल नहीं किया, वो जमीन पर रह जाएंगे और एंड देयर विल बी नो सेकंड चांस कि वो दोबारा बाद में कबूल कर लें जब मुसीबत का दौर होगा। नहीं, हाँ, जब यहूदी मुबश्शिर मुनादी करेंगे, जो उस वक्त खुदा को कबूल करेंगे, तो जो पहली दफा खुदा का कलाम सुनकर उसे कबूल कर लेंगे, फर्स्ट चांस को कबूल कर लेंगे, वो तो बच जाएंगे। लेकिन जो ढीठ है वो ढीठ ही रहेंगे और मरते रहेंगे। ये पहला अफसोस है। मैं बयान करूंगा 6ठा नरसिंह का, जिसका जिक्र है मुकाशवा की किताब, उसका 9वां बाब 13वीं आयत से 21वीं आयत तक, और इसको कहा जाता है दूसरा अफसोस। तो यूहन्ना कहता है कि मैंने आसमान से आवाज सुनी कि दरिया फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। और फिर 4 फरिश्ते खोल दिए गए, और जब फरिश्ते खोल दिए गए तो उस वक्त ना सिर्फ फरिश्ते खोले गए, बल्कि यूहन्ना कहता है कि मैंने 20 करोड़ के करीब घोड़े और उनके घोड़सवारों की आवाज सुनी, और मुझे बताया गया कि इनकी तादाद 20 करोड़ है, और उनके मुंह से, ये जो 20 करोड़ घोड़े हैं, उनके मुंह से आग और गंधक और धुआं निकलता था। तो ये ऐसी मुसीबत थी जो आज तक कभी किसी ने देखी नहीं है, और ऐसा होगा। इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद लोगों ने तौबा ना की। हालांकि यहूदी मुबश्शिर मुनादी कर रहे थे, लोग फिर भी शयातीन की परस्तिश से, पीतल, चांद और सोने चांदी के बुतों की परस्तिश करने से बाज ना आए। वो खून करते रहे, कत्ल करते रहे, जादूगरी से तौबा ना की, हरामकारी से उन्होंने तौबा ना की। लेकिन आज मौका है, अगर आप कुछ भी, कितने भी बड़े गुनाह में मुब्तला है, यीशु मसीह का हाथ आपके लिए फैला हुआ है। वो कहते हैं देख मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया। वो अब तो फजल का दौर है, अब तो खुदा के खादम हाथ जोड़ते हैं आपसे, कहते हैं यीशु को कबूल कर लें। टेलीविजन पे और मुख्तलिफ तरीकों से, क्रूसेड पे, सेमिनार्स पे आपको बताया जाता है कि यीशु को कबूल कर लें। जो लोग तौबा करते हैं, यीशु मसीह को नजात दहिंदा कबूल करते हैं, यीशु उनके गुनाह माफ कर देता है, वो नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। तो फिर जब यीशु मसीह आएगा, अगर वो तैयार पाएंगे तो आसमान पे उठा लिए जाएंगे, लेकिन जमीन रहने के काबिल ना होगी, और उस वक्त फिर कोई मौका नहीं होगा। आज मौका है, यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। अब मैं आऊंगा 7वें नरसिंह की तरफ, जिसका जिक्र है मुकाशवा 11वां बाब 15वीं से 19वीं आयत। ये तीसरा अफसोस है। यूहन्ना जो मुकाशवा का राइटर है, वो कहता है कि मैंने आसमान से बड़ी आवाजें सुनी, और आवाजें क्या थी? दुनिया की बादशाही खुदावंद और उसके मसीह की हो गई, और वो अब गुलाबाद बादशाही करेगा। इसका मतलब आसमान पे वर्शिप हो रही है, आसमान पे सताइश हो रही है, और कहा जा रहा है कि अब दुनिया की बादशाही खुदावंद की हो गई, और अब वो पेशन गोई पूरी होगी जो मुकद्दसा मरियम के साथ फरिश्ते ने बात करते हुए की थी, और कहा था कि तेरे बेटा होगा और वो अब्बल तक बादशाही करेगा। जमीन पर 3.5 साल की खिदमत के दौरान, बल्कि पूरी जमीनी उम्र के दौरान यीशु मसीह
बादशाह के तौर पे नहीं आया, वो तो फजल लेकर आया, निजात की खुशखबरी लेकर आया, लेकिन अब जब वो आएगा बादशाह करने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ये आवाजें सुनी तो होना तो ये चाहिए था कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम सुना कि यीशु मसीह बादशाह करने के लिए आ रहा है, वो उसको कबूल कर लेते। लिखा है इन आवाजों का रद्द अमल ये हुआ कि लोग जो है वो गुस्से में आ गए। क्योंकि आसमान पे वर्शिप हो रही है और लोग ये आवाजें सुन के गुस्से में आ गए। और फिर ये जो हमदो सना है आसमान पे उसकी जिसकी आवाज सुनाई देगी, जिसको सुनकर लोग गुस्से में आ गए। आज भी जब हम हमदो सना करते हैं, जब हम प्रस्तुति करते हैं, जब हम इबादत करते हैं, तो लोगों के नजदीक ये मजाक है और बाज़ लोग तो गुस्से में आते हैं और बाज़ लोग चाहते भी नहीं कि उनके एरिया में कोई क्रूसेड हो, कोई इबादत हो, तो वो बड़े गुस्से में तैश में होते हैं, रुकावटें डालते हैं। ऐसा ही उस वक्त भी हुआ, लेकिन हमें उसकी प्रस्तुति करते रहना है और बताना है कि देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, बादशाह वाला बादशाह यीशु राजा, यीशु जो बादशाह है वो बादशाह करने के लिए आ रहा है, जिसका नाम बादशाह का बादशाह है, वो आने वाला है। ज़बूर की किताब के ज़बूर 99 में पहली दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद सल्तनत करता है, कौमें कांपे और वो टोपियों में बैठता है, जमीन लरसे, खुदावंद सयून में बुजुर्ग है और वो सब कौमों पर बुलंदों वाला है। हालेलुया, वो बुलंदों वाला है, वही बादशाह करने के लिए आ रहा है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह जो है वो आने वाला है, जिसके लिए हम कहते हैं हर कोई आके यीशु बादशाह जलाल का वो आने वाला है। देखो देखो कोई आ रहा है, यीशु जल्द आ रहा है और राज करने के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप उसके लिए तैयार हो जाए। आसमान पे प्रस्तुति, जमीन पे भी प्रस्तुति होनी चाहिए। और एक और बात मैं बताता चलूं कि जब आसमान से ये आवाजें आई, वर्शिप की आवाजें, तो कौमों को गुस्सा आया और गुस्से का नतीजा ये हुआ कि आसमान पर बिजलियां पैदा हुई, आवाजें पैदा हुई, गरजे पैदा हुई, ओले बरसे और भूचाल आ गया, खतरनाक भूचाल, और उससे बेशुमार लोग जो है मर गए। अब दोस्तों, ये जो औरत है जिसका जिक्र मैंने पढ़ा कि वो दरवाजे में चिल्लाती थी, ये कौम बनी इसराइल है, और सिर्फ कौम बनी इसराइल ही उस मुसीबत में नहीं होगी, लेकिन खुसूस उसका जिक्र किया जा रहा है। बाकी लोग भी जिन्होंने यीशु को रद्द किया इसमें होंगे, और उनका जो चलाना है ये ट्रिब्यूलेशन से गुजरने का वाकया है। और इसके लिए खुदा के कलाम में से नए अहद में मुकद्दस पतरस ने एक पेशगोई की है, आइए उसको पढ़ते हैं। दूसरा पतरस 3वां बाब 10वीं से 14वीं आयत, यानी क्या है, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और निजामे फल हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से बिगड़ जाएंगे और अजरामे फल हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे, लेकिन आप उसके वादे के मुवाफिक नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ऐ अजीजों, चूंकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो। अपनी जिंदगी पाकीज़गी से गुजारें। जब मालूम है कि ये जमीन पिघलने को है और जब यीशु आएगा तो आप तैयार हो आसमान पे उठाए जाने के लिए। उन कवारियों की तरह जो तैयार पाई गई थी आसमान पे उठाए जाने के लिए, तैयार हो जाए, मुंतज़िर रहे, मुश्ताक रहे और खुदावंद का इंतजार करें। इन आयात में जो मैंने अल्फाज पढ़े हैं वो है खुदावंद का रोज, खुदावंद का दिन। तो खुदावंद का दिन जो है ये ग़ज़ब इलाही का दिन है, रैथ ऑफ गॉड है, जिसमें नरसिंगे फूके जाएंगे, जिसमें मुसीबत होगी, ट्रिब्यूलेशन होगी। तो खुदावंद का दिन इसे कहा जाता है। ये खुदावंद का दिन ये जो खुदावंद का दिन है, इसकी मुद्दत 7 साल है, जो ट्रिब्यूलेशन का दौर है। और यूएल की किताब में से मैं आपके लिए एक नसीहत पढ़ना चाहता हूं, अपने लिए, आप सबके लिए, ईमानदारों के लिए पढ़ना चाहता हूं। यूएल 2 बाब उसकी पहली आयत, सयून में नरसिंगा फूंको, मेरे कोई मुकद्दस पर सांस बांधकर जोर से फूंको, मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएं,
क्योंकि खुदावंद का रोज़े अजीम, खुदावंद का रोज चला आता है, बल्कि आप पहुंचा है। यूएल कहता है खुदावंद का रोज आ रहा है, बल्कि वो तो कहते हैं आ चुका है। इसका मतलब है कोई देर बाकी नहीं है। खुदावंद का रोज का मतलब है गजब आने वाला है। आज फजल का दौर है। इस फजल के दौर में मैं दो तरह के इतलाक आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले नंबर पे मैं उनसे बात करूंगा जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, जिन्होंने निजात नहीं पाई, जिन्होंने यीशु मसीह को शख्सी निजात जिंदा कबूल नहीं किया, जिन्होंने यीशु को रद्द किया है, जिन्होंने खुदा के खादमों का मजाक उड़ाया हुआ है, निजात की तालीम को कबूल नहीं किया, उनसे बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज वक्त है, तौबा करें और कहें, ऐ यीशु, तू निजात देने के लिए आया, तूने मेरे लिए जान दी, मेरे गुनाह माफ कर, मेरे दिल को धो के पाक साफ कर, मुझे नई पैदाइश दे। जब आप दिल से ये दुआ करेंगे, आपको निजात मिल जाएगी। फिर आप खुदा के खादमों को बताएं कि आपने निजात पाई है, वो आपको अगला कदम बताएंगे। पानी का बपतिस्मा लीजिए। अच्छी कलीसिया जो बाइबल के मुताबिक सही सी तालीम देती है, उसको ज्वाइन कर ले और फिर खुदा के साथ साथ चलते रहे, आप आसमान पे उठा दिए जाएंगे। और ईमानदारों से मुखातिब हूं जो पहले से निजात याफ्ता है, आपका ये कहना कि मैं निजात याफ्ता हूं काफी नहीं है अगर आप निजात में कायम नहीं रहते। अपने आप को कायम रखें और मुंतज़िर रहें और तैयारी में रहें। हर वक्त खुदा की प्रस्तुत करें, ईमानदारों के साथ मिलके भी और अकेले भी और खानदानों के साथ भी उसकी प्रस्तुत करते रहे, ताकि आने वाला दिन जो रैप्चर का दिन है, आपके लिए मेरे लिए मुबारक हो। खुदा आपके साथ।